Good morning, students. We'll study English literature today. Chapter number 6, Uncle Samir the Sailor. Who is a sailor? A sailor is a person who sails ships. Okay? Now, come on, let's start the chapter. During the Dussehra holidays, I and my younger brother Rahul visited our classmate's home. She is Supriya. Her mother is a housewife and father is an advocate. Supriya's mother and Uncle Samir were at home. We had a delicious lunch with them. At 12 in the noon, we visited Supriya's garden. There were beautiful green lawns, flower beds of roses, marigold, jasmine, lily, etc., and a fish pond which was full with many colored fish. The fish looked very beautiful swimming in the pond. So, two children, Anjana and Rahul, went to Anjana's friend Supriya's house. Okay? Now, Supriya's mother is a housewife and father is an advocate. They had lunch with them. The lunch was very tasty, very delicious. And at 12 in the noon, they visited Supriya's garden. The garden was full of varieties of flowers. Marigold, jasmine, lily, roses, all these are flower names, varieties of flowers. And to the surprise, there was a fish pond. And the fish pond was full of variety of fish. Very colorful. Fishes are colorful. They are beautiful. Yes, of course, they are beautiful. I asked Supriya, do you know about fish? Supriya said, oh, why not? I know many things about fish. I said to her, what helps a fish to swim? Supriya replied, the fish has an air bladder in its stomach which is full of air and it helps a fish to swim or float in water. अंजना ने सुप्रिया से पूछा, Do you know about fish? सुप्रिया ने कहा, Yes, I know many things about fish. मुझे बहुत सारी चीज़ें फिश के बारे में मालूम है. तो अंजना ने कहा, फिश स्विम कैसे करती हैं? सुप्रिया ने बताया कि फिशेस के स्टमक में एक एयर ब्लैडर होता है. एयर ब्लैडर, ब्लैडर मीन्स अ पाउच, अ बैग सॉर्ट ऑफ थिंग, अ स्मॉल पाउच. एक एयर ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी होती है, विच इज़ फुल ऑफ एयर एंड इट हेल्प्स अ फिश टू स्विम और फ्लोट इन वाटर, जिसकी वजह से फिश पानी में स्विम या फ्लोट करती है, वो डूबती नहीं है. ठीक है. आई आस्क्ड हाउ फास्ट अ फिश कैन स्विम. Supriya said, sorry, I cannot make reply to this question, but my uncle Samir knows a lot about marine life, particularly about fish. He is a sailor and has been serving in merchant navy for a long time. He has sailed around the world many times. Let us go to him. Now, the next question Anjana asked, how fast can a fish swim? Fish कितनी तेज swim कर सकती है? But Supriya did not know the answer. So, what she suggested, I don't know the answer and let's go to my uncle Samir who is a sailor in merchant navy. Merchant navy में उसके अंकल समीर एक सेलर थे. वो शिप सेल करते थे, ड्राइव करते थे एंड वो पूरी दुनिया को कई बार घूम चुके थे ऑन शिप. ठीक है. तो सारे बच्चे कहाँ चले गए? अंकल समीर के पास चले गए. उस टाइम पे अंकल समीर कहाँ थे? अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे. सो वी वेंट इनसाइड द ड्राइंग रूम. Uncle Samir was resting in his easy chair and was reading a foreign magazine with beautiful pictures in it. So Priya said to her uncle, excuse me. She is Anjana, my classmate, and he is Rahul, Anjana's younger brother. Uncle, we want to know something about marine life. Now the three children entered the drawing room of Uncle Samir. Uncle Samir was reading an interesting foreign book which has many beautiful pictures in it. उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल पिक्चर्स थी. सुप्रिया जैसे ही वहाँ पहुँची उसने अंकल को कहा, एक्सक्यूज़ मी अंकल, और अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया. कौन कौन फ्रेंड्स थे? अंजना एंड राहुल. अंजना एंड राहुल से इंट्रोड्यूस कराया और अंकल समीर को बताया कि वी वांट टू नो डिफरेंट थिंग्स अबाउट फिश एंड मरीन लाइफ. Uncle Samir said, you are most welcome little friends. Ask what you want to know.
अंकल समीर ने कहा मोस्ट वेलकम। पूछो क्या पूछना चाहते हो। Uncle, how fast can a fish swim? Anjana said. Uncle replied, it can swim as fast as a good racer. I mean about half kilometers per minute. अंजना ने पहला क्वेश्चन किया, फिश कितनी तेज स्विम कर सकती है? सो व्हाट अंकल रिप्लाइड, एज फास्ट एज अ रेसर। रेसर मतलब धावक, दौड़ने वाला। ठीक है, जो रेसर होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनकी तरह फिशेस स्विम करती हैं अबाउट 500 मीटर्स पर मिनट। I said to uncle, how do fish breathe in water? Uncle Samir explained, well, it is a very good and important question. You know, fish cannot breathe with their noses and mouth because they do not have lungs like us. They have gills. They breathe with these. अगला क्वेश्चन अंकल समीर से पूछा गया, फिश पानी में ब्रीथ कैसे करती हैं, सांस कैसे लेती हैं? अंकल समीर ने बताया कि फिश के पास नोज नहीं होते, लंग्स नहीं होते, तो वो हमारी तरह ब्रीथ नहीं कर सकती हैं। वॉट डू दे हैव फॉर ब्रीदिंग? दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग। फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बट कैसे? हाउ? The uncle took the children to the aquarium. What is an aquarium? An aquarium is a place, a glass box for keeping fish. It is full of water. All of you must have seen aquariums, no? Yes. The fish were swimming in it and taking water into their mouth and throwing it out again. They take oxygen from water by gills and thus they breathe. We can make fish good pets on keeping in bowls or aquarium. It is also a good hobby. ओके, अंकल समीर ने दिखाया कि एक्वेरियम में जो फिशेस थी वो पानी को अंदर ले रही थी और थ्रू देयर माउथ एंड देन थ्रोइंग इट आउट अगेन। पानी लेती थी एंड दे थ्रो इट आउट अगेन। तो इस दौरान क्या होता था, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बाय गिल्स। जो गिल्स तक पानी पहुंचता था तो गिल्स उसमें से ऑक्सीजन ले लेते थे, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता था एंड दस दे ब्रीथ एंड दिस इज़ हाउ दे ब्रीथ। ब्रीदिंग का क्या सिस्टम होता है? ब्रीदिंग से हमें क्या मिलता है? ब्रीदिंग से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें भी और फिशेस को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो फिशेस भी ऑक्सीजन लेती हैं, तो जब वो मुंह में पानी लेती हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो फिशेस ले लेती हैं। ठीक है, एंड फिश कैन बी वेरी गुड पेट्स। Uncle told us the body of fish is like a boat. They have fins over their body which help them to swim. Fish lay eggs in water. Eggs are large and many in number. अंकल ने आगे बताया कि फिश की बॉडी किस शेप की होती है? बोट शेप्ड बॉडी होती है। जो बोट शेप्ड बॉडी होगी तो वो आसानी से स्विम करती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं इसको। और फिशेस के बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स का फंक्शन क्या होता है? फिन्स का काम क्या होता है? दे हेल्प द फिशेस टू स्विम। ठीक है, और अंकल ने और बताया कि फिश ले एग्स इन वाटर। अब रिप्रोडक्शन फिशेस में कैसे होता है? फिशेस में रिप्रोडक्शन होता है, दे ले एग्स। कहाँ ले करते हैं? दे लिव इन वाटर, सो दे ले एग्स इन वाटर। वो पानी में ही, वाटर में ही एग्स को ले करते हैं एंड द एग्स आर मैनी इन नंबर। ठीक है, बहुत सारे एग्स एक बार में ले करते हैं एंड दे आर लार्ज। Uncle, the whale is the largest fish in the world, said Rahul. No, not at all. The whale is not a fish. It gives birth to babies, but fish do not. They lay eggs. It suckles its babies. It is a mammal. अभी राहुल बोला, अंकल वेल इज़ द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। वेल इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश है। बट अंकल सेड यू आर रॉन्ग। गलत बात, वेल फिश ही नहीं है। वेल सबसे बड़ी तो है लेकिन वो फिश नहीं है। वो क्या है? वो मैमल है। वो मैमल है, वो पानी में रहती है लेकिन वो मैमल है। अब मैमल क्या होते हैं? डू यू नो मैमल क्या होते हैं? मैमल ऐसे क्रिएचर्स होते हैं which give birth to babies. They do not lay eggs. They give birth to babies. And second thing, they feed their babies on their milk. इसको कहते हैं suckles. They suckle their babies. Okay? तो mammals give birth to their baby mammals, to their child. They give birth to their child. They do not lay eggs. वो अंडे नहीं देते, इसलिए वो क्या है? Mammal है। ठीक है? Supriya asked, Uncle, do fish sleep too? Uncle said yes they do, but they do not close their eyes because they have no eyelids. अब सुप्रिया ने पूछा क्या फिशेस सोती हैं? तो अंकल ने कहा
यस, वो सोती हैं लेकिन उनकी आंखें खुली रहती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव eyelids. Rahul asked, Uncle, can fish see in water? Uncle said, yes, they can see in water. They have nictitating membrane over the eyes which prevents water to enter inside the eyes. It is transparent so the fish can see through it. अब राहुल ने पूछा, क्या पानी में फिशेस देख सकती हैं? क्योंकि हम लोग तो पानी में आँख खोल के नहीं देख पाते हैं, तो क्या पानी में फिशेस देख सकती हैं? अंकल ने कहा, यस, पानी में फिशेस देख सकती हैं. कैसे? बिकॉज दे हैव अ मेम्ब्रेन ओवर द आइज. उसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, वो मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से पानी उनकी आँखों के अंदर नहीं जाता है. पानी नहीं जाता है तो, और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आर पार दिखाई देता है, जैसे प्लास्टिक शीट होती है ट्रांसपेरेंट वाली, उसी तरह से. तो वो वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसलिए वो देख सकते हैं. वो फिशेस कैन सी थ्रू देम. ठीक है. सो प्रिया सेड, अंकल, वी डू नॉट सी ईयरलोब्स इन फिश. इट मीन्स दे हैव नो ईयर्स. आर दे डेफ? अंकल रिप्लाइड, नो, देयर ईयर्स आर हिडन. वी कैनॉट सी देम बट दे हियर साउंड्स एंड वॉइसेस. नाउ सुप्रिया ने पूछा, अंकल, हमें फिशेस के ईयरलोब्स तो दिखाई नहीं देते. ईयरलोब्स मीन्स दिस एक्सटर्नल ईयर. ओके, हमें फिशेस के ईयरलोब्स तो दिखाई नहीं देते, तो क्या फिशेस डेफ होती हैं? डेफ मीन्स बहरा, उनको सुनाई नहीं देता. तो अंकल ने कहा कि नो, दे हैव हिडन ईयर्स. उनके ईयर्स होते हैं लेकिन छिपे हुए होते हैं. ठीक है. सो दे कैन हियर साउंड्स एंड वॉइसेस. वो आवाज़ें सुन सकती हैं. अंजना सेड, अंकल, कैन दे स्मेल? Uncle explained, yes, they can. Rahul said, does the fish feel cold in water? Uncle said, no, the fish does not feel cold in water because the fish changes the temperature of the body with the temperature of water. अब राहुल ने पूछा कि क्या फिश को पानी में ठंड लगती है? हम लोग को पानी में ठंड लगती है ना? तो अंकल ने बताया कि नो, फिश को पानी में ठंड नहीं लगती. क्यों नहीं लगती? क्योंकि फिश अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर लेती हैं. अगर पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे समर्स में हो जाता है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, राइज कर जाता है. तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता. इसी तरह विंटर सीजन में जब वाटर का टेम्परेचर लो रहेगा तो फिशेस अपने बॉडी का टेम्परेचर भी लो कर लेती हैं. तो इस वजह से टेम्परेचर डिफरेंस ना होने की वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती. दे डू नॉट फील कोल्ड. राहुल सेड इन द एंड, अंकल, विल यू टेल अस सम इंटरेस्टिंग टॉक्स अबाउट द मरीन लाइफ? अब राहुल ने पूछा, टेल अस समथिंग अबाउट मरीन लाइफ. मरीन लाइफ के बारे में हमें आप कुछ बताइए. सी में जब रहते हैं तो उसके बारे में हमें आप कुछ बताइए कि आप लोग कैसे शिप में रहते हैं. अंकल सेड, लिसन चिल्ड्रन, people who live on ships do not use seawater for drinking and cooking because it is very hard. It has salt in great quantity, so it does not suit them. So they store water from other sources in the ship. We use eatables stored in fridge and do not get fresh vegetables and fruits. We also have theatres, TV sets and music band, table tennis courts etc. for entertainment. अब अंकल ने कहा, बच्चों सुनो. क्या सुनो? हम जो शिप पे रहते हैं, हम सेलर्स और हमारा पूरा क्रू जो होता है, तो हम जो शिप पे रहते हैं तो हमें पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है. क्यों स्टोर करके रखना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर? क्योंकि जो हम तो पानी में ही रहते हैं. हम तो कहाँ हैं? हम तो सी में हैं. सी इज़ व्हाट? सी इज़ फुल ऑफ वाटर. लेकिन सी का वाटर बहुत सॉल्टी होता है. सबको पता है सी में के पानी में बहुत सारा सॉल्ट होता है, नमक होता है. तो दिस वाटर इज़ नॉट हेल्दी फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. अगर उस पानी को यूज़ करेंगे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए तो वो बहुत हार्ड होता है. उससे क्या होगा? हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी. जो सेलर्स, जो क्रू है, उसकी पूरी तबीयत ख़राब हो जाएगी. दे विल फॉल इल. सो दे डू नॉट यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. एंड व्हाट डू? दे स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. ठीक है. एंड they do not get fresh vegetables also, fresh fruits also. Why? Because they are in sea. वहाँ पे markets नहीं होते, तो they do not get fresh fruits and vegetables. तो क्या करते हैं? They keep food in the fridge, deep freezer में
फ्रीज किया जाता है फूड्स को. एंड how do they entertain themselves? They entertain themselves. They have table tennis courts, they have theaters, they have music bands, they have TVs there, they have everything so that they can entertain themselves. Okay, they do not feel bored on the ship. After doing their work, they use these things to entertain themselves. When we were about to start for our house, Uncle showed us album which had pictures of shark, dolphins, octopus, seahorse, electric fish. I mean the biggest and the smallest fish. It was 5 o'clock in the evening and we had tea with biscuits and samosas. We returned our home and told our mother about our meeting with Uncle Samir. She was also much pleased. So, जब बच्चे लौटने लगे तो लौटने के पहले अंकल समीर ने उन्हें एक एल्बम दिखाई. उस एल्बम में क्या था? बहुत सारे फिशेस की पिक्चर्स थी. अ वैराइटीज ऑफ फिशेस लाइक डॉल्फिन्स एंड शार्क्स एंड ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स एंड इलेक्ट्रिक फिश. मतलब बड़े से बड़ी फिश और छोटे से छोटे फिश की पिक्चर्स उस एल्बम में थी. The children were very happy and then they had tea with biscuits and samosas, and then they returned home and they shared their experience with their mother, and the mother again was very happy. Why she was happy? Because meeting Uncle Samir, the children learned so many interesting facts about fishes and marine life. It enhanced their knowledge. It was a wonderful day for them. So children, it was an interesting chapter for you also. Now you have to read the chapter again and do all your work. Have a good day.